In this lecture, we will do some theorems on greatest integer function or bracket function. If x is any real number, then greatest integer value of greatest integer x over n is equals to greatest integer x by n, where n is a positive integer. Now, we will show this left hand side equal to right hand side. By division algorithm, we know greatest integer x equals to n into q plus r, where q is quotient and r is remainder, and 0 less than equal to r less than n. x कोई भी रियल नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी। उस इंटीजर को हम इस पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें तो कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। लेट q बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर, ओके, बिकॉज दिस नंबर इज इंटीजर. Also, for any real number x, we can write x as greatest integer x plus s, where s lies between 0 and 1. x कोई भी रियल नंबर है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एंड सम नंबर जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है. Now consider greatest integer x by n. Substituting the value of x here, this is greatest integer x plus s over n, and greatest integer x is from 1 equal to n into q plus r plus s over n. We can write it as greatest integer q plus r plus s over n. Now this r is less than n. This means r must be less than equal to n minus 1. अगर r n से less है तो n minus 1 के equal होगा या less होगा. And s is less than 1. So r plus s will be less than n minus 1 plus 1, because r is less than equal to n minus 1 and s is less than 1. Using these two inequalities, we have r plus s less than n minus 1 plus 1, that is r plus s less than n, and we can write it as r plus s over n less than 1. It means this number is less than 1. So greatest integer value of this is q. अगर ये नंबर लेस देन 1 है और q हमारे पास एक इंटीजर है, q वाज इंटीजर, q इंटीजर है, ये नंबर लेस देन 1 है, तो जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, q ही होगी. सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू q. Now consider left hand side. It is greatest integer x over n. X equals greatest integer x was equal to n into q plus r. We can write it as q plus r by n, greatest integer value. Now r by n is less than 1 again, because r was less than n. This gives r by n less than 1. Now this r by n is less than 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, q ही आ जाएगी, क्योंकि q एक इंटीजर था, उसमें हम एक नंबर ऐड कर रहे हैं जो 0 और 1 के बीच में है, तो वैल्यू क्या आएगी, q ही आ जाएगी. अगर ये नंबर 1 से ग्रेटर होता तब वैल्यू कुछ हो रहा थी, बट यहाँ पर ये नंबर लेस देन 1 है, 0 और 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, q आएगी, बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. Thus left hand side equals to right hand side. Next theorem, if n and a are positive integers, then the number of integers among 1, 2, 3 up to so on n which are divisible by a is n by a. हमने इस सेट में से, सेट ऑफ n इंटीजर्स, इस सेट में से वो नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जो a से डिविजिबल है.
और हमें शो करना है वो कितने हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई a. Let S be the set containing elements 1, 2, 3 and n. Let the integers in n s which are divisible by a are. हमने वो नंबर देखने हैं कितने हैं जो a से डिविजिबल है. Let us suppose इसके अंदर जो नंबर्स, जो इंटीजर्स a से डिविजिबल है वो सपोज a है, 2a है, 3a है, अप टू सोन RA है जो इसमें बिलोंग कर रहा है. और RA लार्जर नंबर हमने लिया है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो RA लेस देन और इक्वल टू n होगा. हमने इस सेट में से वो इंटीजर्स लिए जो a से डिविजिबल है. सपोज a डिविजिबल है, इसमें बिलोंग कर रहा है, 2a डिविजिबल है, 3a डिविजिबल है, अप टू सोन कहीं ना कहीं एंड होगा बिकॉज दिस सेट इज फाइनाइट. लेट RA इज द लार्जेस्ट नंबर which is divisible by a and belongs to this set. तो RA की वैल्यू क्या हो सकती है, RA या तो n हो सकता है या फिर n से लेस हो सकता है. therefore we have written RA is less than equal to n. RA अगर n से लेस या इक्वल है तो R प्लस 1a क्या हो जाएगा, n से ग्रेटर हो जाएगा और वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा. That is RA less than equal to n less than R plus 1a. We have combined these two inequalities. Dividing by a, we have R less than equal to n by a less than R plus 1. अब n by a की वैल्यू लाई कर रही है R और R plus 1 के बीच में, और ये इससे स्ट्रिक्टली लेस है और इसके इक्वल है. इट मीन्स, और RA क्या है, इंटीजर है. इट मीन्स इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, R आएगी. ये नंबर दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, इसके ये लेस देन और इक्वल टू है और इसके ये स्ट्रिक्टली लेस है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, R ही होगी. इट मीन्स ये कितने नंबर हो गए, ये सारे नंबर ऐसे थे जो a से डिविजिबल थे और इस सेट में बिलोंग कर रहे थे. कितने नंबर थे ये, 1, 2, 3 अप टू सोन R थे. और R किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई a. दस देयर आर n बाई a इंटीजर्स नेमली a, 2a, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R हेयर, n बाई a इंटू a विच आर डिविजिबल बाई a. ये नंबर ऐसे है जो a से डिविजिबल है और ये कितने नंबर हैं, n बाई a, ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई a. Hence, number of integers among this 1, 2, 3 and these integers which are divisible by a is greatest integer n by a.